important to be said. If somebody is in such a hurry कि वो कहते हैं कि जी हाउस उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, इस तरह नहीं होता. मैं अगर कोई बात करना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दें. मैं जो बात करना चाहती हूँ, इस सारे हाउस को आज एक आर्टिकल छपा है, द स्टेल्थ कॉस्ट ऑफ लेजिस्लेचर, डॉन में छपा है, और उसमें सारे मेंबरान को, नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स को जिस तरह स्कैंडलाइज किया गया है और जो उनका प्रिविलेज उनका वायलेट किया गया है और जिस तरीके से उनकी बेतौकीरी की गई है, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. प्लीज मुख्तसर बात कर लीजिए, उसके बाद बिजनेस होगी. मकसद इस आर्टिकल का ये है कि ये बताना और ये कहना कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ कुछ भी करने नहीं आते, स्वाय तनख्वाहें लेने के लिए आते हैं. उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जिस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, वो कोई 10 लाख रुपया बन रहे. वो ये कहते हैं कि जी इतना अमाउंट ये लोग विड्रॉ करते हैं, और करते क्या है, यहाँ एक सर्कस लगा हुआ है. ये इस आर्टिकल का मफहूम है. ये आर्टिकल जो है, ये सद्दाम हुसैन साहब को ही हैं, इन्होंने ये पाइड जो है ये गवर्नमेंट का इदारा है. पाइड जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है. मैं ये पूछना चाहूँ, उन्होंने कहा जी हमने बड़ी रिसर्च की. मैं मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कभी 10 लाख एक महीने के विड्रॉ किए हैं सेनेटर साहिबा? नहीं ना. एग्जैक्टली. प्लीज कैरी ऑन. मैडम चेयरपर्सन, मुझे बात करने दें. वो लिखते हैं कि इलेक्टेड टू लेजिस्लेट एंड अपहोल्ड द लॉ. Many Pakistani lawmakers seem merely interested in the perks and privileges that come with the title. Perks influence plush accommodations and a lifestyle far removed from the average citizen's. Reality has turned these lawmakers into power-hungry players in a high-stakes game. कौन से हाई स्टेक्स है, कौन से पावर हंग्री गेम हो रही है यहाँ? फिर वो कहते हैं, The Pakistan Institute of Developmental Economics assembled a team to dissect the unnecessary costs weighing down the economy. The scope is broad, but let's just pick one thing at a time. For now, we look at the cost of federal lawmakers in Pakistan. वो कहते हैं, let's crunch the numbers. Federal lawmakers pocket a salary of $150,000 rupees, padded with 38,000 in allowances, bringing their monthly haul, लफ्ज़ इस्तेमाल किया haul, to rupees 188,000. Toss and session related extras, and they walk away with 218,000 a month. फिर वो कहते हैं, the real jackpot is that each lawmaker is entitled to have a parliamentary lodge where the opportunity cost is 1 million per month. Is 1 million per month. फिर वो आगे जाके ये कहते हैं, अच्छा, each parliamentary session sets this country back by 66.5 million rupees. Then 25 business class tickets they get annually. Development funds meant for local governments go through these lawmakers, leading to a hot mess of mismanagement. Then these lawmakers receive extensive institutional support from officers and staff of the Senate and National Assembly, whose salaries, allowances, and retirement benefits are provided because of their service to lawmakers. When all said and done, keeping our federal legislators in luxury costs an eye-watering 27.6 billion a year. The National Assembly actually functions for just 56 days, while the Senate squeezes in only 35 days annually. Annually वो कहते हैं. फिर वो कहते हैं, then rupees 500 million is dished out in grants, subsidies and write-off loans. हमको भी बताएं कौन सी grant, subsidies और write-off loans हैं for both houses. फिर आगे जाके खुद ही कहते हैं कि these costs may not appear that significant, but it would be easier to swallow if they came with real returns. We are getting a whole lot of political theatrics with not nearly enough meaningful policy debate. For Pakistan to move forward, we need to turn this privilege-driven circus, ये उन्होंने कहा है, privilege-driven circus into a powerhouse of accountability and productivity. मैडम चेयरपर्सन, पाइड जो है ये गवर्नमेंट का इदारा है. पाइड का एक भी पॉलिसी इनपुट
मुझे कोई बता दे इस हाउस में आज बैठे हुए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए या पाकिस्तान के लॉ मेकर्स के लिए कोई ऐसा स्टेप उन्होंने कभी सजेस्ट किया हो कि इकॉनमी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो कौन सी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है जिससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक भी आर्टिकल हो जो वर्ल्ड बैंक से आकर रिटायर होता है, जिसको और कोई जगह नहीं मिलती, वो आके तो उसका हेड बन जाता है। लेकिन हमको ये बताएं कि इनको क्या मिलता है, इनके पास से प्रिविलेजेस क्या हैं, इनकी सैलरीज क्या हैं। सेनेटर साहबा, आपने बहुत वैलिड बात रेज की है। 35 दिन तो मजाक का खेज बात है। और जो मेरी गुजारिश सुन दे, इसका मकसद मेरी गुजारिश सुन दे, आप एक रिटर्न, इसका मकसद ये नहीं है, इसका मकसद ये है कि टू रिडिक्यूल लॉ मेकर्स इन दिस कंट्री, इट इज टू रिडिक्यूल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Certainly, what would you like to do? ये इनका है। Which newspaper is it? जी, while I'm for freedom of expression, I believe parliamentarians have the right to. I have the right. They have the need. We need to get on with this, please. नफरतें फैलाने के लिए जी बिल्कुल, आप एक रिटर्न वो दे दें। क्या इस मुल्क में कोई और सैलरी नहीं लेता? नहीं, बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि एक फेडरल सेक्रेटरी की सैलरी क्या है, एक आर्मी के मेजर की सैलरी क्या है, एक जज ऑफ द हाई कोर्ट की सैलरी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की सैलरी क्या है, उनके पास से प्रिविलेजेस क्या हैं, और उनका मुकाबला फिर करें यहाँ। मेंबर्स इसको प्रिविलेज कमेटी भेजना चाह रहे हैं, आप जरा राइटिंग में भेज दें ताकि इसको आगे सिर्फ एक आर्टिकल का एक शख्स का नहीं है, ये उस ज़हनियत का है। ठीक है, थैंक यू सेनेटर साहिबा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कि लेजिस्लेटर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिस्टम को। जी, आई रियलाइज योर एंगर और आपका गुस्सा भी जायज़ है। मैं और इज्तिमाई सेनेटर साहब इजाज़त दें, वी हैव 5:45 हो गए। नहीं है हाउस कह रहा है, सेक्रेटरी साहब देख लेंगे इसको एंड वी विल रेफर इट ऑनवर्ड्स। जी बस हो गया ना, मैंने कह दिया, आप रूलिंग दे दें, भेज दिया है ना। प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखें, रिफर टू द कमिटी, तशरीफ रखें। वो मुझे पता नहीं था कौन सा अखबार है, वी नीड दैट क्लिपिंग, तो उसको नहीं, आप पूरा दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोहसिन भाई चलेगा।